ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਈਟੀਟੀ ਕੇਡਰ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ MCQ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਏਅਰ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਮਿਕਸਚਰ ਬਿਕੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਏਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਕਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਕੈਮੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, H2S। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਲ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਰੈਟਿੰਗ ਫਨਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ, ਕੋਰਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਆਇਲ ਜਿਹਦੀ ਲੇਅਰ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਪਰੇਟਿੰਗ ਫਨਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਆਂ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਐਨੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ, ਫਿਕਸ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਕਸਚਰ 'ਚ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਏਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ, ਸਲਫਰ, ਸੈਨ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਕਨ ਵਿਦ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰਡ ਥਰੂ ਅ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ। ਦ ਫਿਲਟਰ ਇਜ਼ evaporated to dryness in a china dish but will be left in the dish after evaporation। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸੌਲਟ ਪਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਕ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਪਾਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਸੈਂਡ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੇਖਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਘੁਲੂਗਾ, ਸਲਫਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਸੌਲਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੋਲਿਆ ਸੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਐਂਡ ਸਲਫਰ।
ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ बच गया अपने कोल। हुण जदों आपां ने कार्बन डाईसल्फाइड ते सल्फर नूं इवैपोरेट किया, मतलब कि चाइना डिश दे विच अपने कोले दो चीज़ां रह गईयां सी, कार्बन डाईसल्फाइड ते सल्फर। हुण जदों आपां इहनूं हीट करांगे तां की होऊगा, कार्बन डाईसल्फाइड उड़ जूगा, पिछे की रह जूगा सल्फर। ठीक है, की लैफ्ट रह जूगा सल्फर। ऑप्शन नंबर बी की है करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट अपने कोले हैगा टू सबसटांस ए एंड बी वैन ब्रॉट टुगैदर फॉर्म आ सबसटांस सी, कि आपां ने दो चीज़ां मिलाइयां ए ते बी, उन्हां तो किहड़ी चीज़ बना ली आपां ने, सी बना ली। ठीक है, तो प्लस दे विच की होई अपने कोले हीट रिलीज़ हुई है, हीट बाहर निकली अपने कोल। कहंदे जिहड़ा सी आ उहदियां जिहड़ियां प्रॉपर्टियां ने वो डिफरेंट ने ए ते बी तो वो की चीज़ होगी। आपां ने पढ़िया सी जिहड़ा एलीमेंट आ तां सेम प्रॉपर्टियां होणगियां, तां प्रॉपर्टियां डिफरेंट कदों हुंदियां ने, जदों कोई चीज़ कैमीकली रिएक्ट करती है। आपां नूं पता मिक्सचर कदों बनदा है कि जदों फिजिकली रिएक्ट करती है। ठीक है, कोई भी कैमीकल रिएक्शन नहीं हुंदा, तां कैमीकल रिएक्शन कदों हुंदा, जदों अपने कोले कंपाउंड बनदा है। ठीक है, दो डिफरेंट सबसटांस लईए, जिवें आपां ने ले लिया H2, ठीक है, प्लस आपां ने ले लिया O2, तो अपने कोले की बन गया वाटर। ठीक है, यह की सी अपने कोल गैस सी, ये भी की है गैस है। जिहड़ी चीज़ अपने कोले बनी है वो की है लिक्विड। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टियां हो गई। डिफरेंट प्रॉपर्टियां कदों होंदियां ने, जदों अपने कोले कोई कंपाउंड बनता है। तो की आऊगा ऑप्शन नंबर ए की अपना करैक्ट ऑप्शन। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कैंफर कैन बी प्यूरीफाइड बाय, आपां ने पढ़िया सी कि कैंफर नूं आपां किवें प्यूरीफाई कर सकते हैं। कैंफर की है, एक वोलेटाइल सल्यूशन है। वोलेटाइल कौन होंदे है, जिहड़े की है भाफ बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जिहड़े डायरैक्ट सॉलिड तो की बन जाते हैं गैस। तो आपां नूं पता है कि वो किहड़ी प्रोसैस सी जिहदे विच सॉलिड तो डायरैक्ट गैस बनदी सी, वो प्रोसैस सी अपने कोले सबलीमेशन। सबलीमेशन दे विच की हुंदा सी, कोई भी चीज़ जिवें आपां नैफ्थलीन बॉल्स पढ़ियां सी, नैफ्थलीन दीयां गोलियां सीधा की है सॉलिड तो गैस स्टेट दे विच चेंज हो जांदियां ने। कैंफर भी इस तरह की एक एग्जाम्पल है। क्लीयर। नैक्सट अपने कोले हैगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, किहदे विच जिहड़ा मिक्सचर बनूगा। आपां नूं पता मिक्सचर कदों बनदा है कि जदों फिजिकली आपां दो चीज़ां नूं घोलदे हां, उदों की बनदा मिक्सचर। हुण आपां ऑप्शन देखदे हां, कहंदे क्रशिंग मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, कि आपां कोई भी टाइल ले ली, इट ले ली, मतलब कि उन्होंने आपां तोड़ रहे हैं। जे आपां सेम चीज़ नूं ही तोड़ रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब कोई मिक्सचर नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नैक्सट अपने को हैगा ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इंटू स्मॉल पीसिस, कि आपां आइस का बर्फ का टुकड़ा लैके उन्होंने तोड़ रहे हैं, तो ये भी कोई अपने को आंसर नहीं हो सकता। नैक्सट है एडिंग सोडियम मैटल टू वाटर। आपां नूं पता है कि जो आपां सोडियम मैटल नूं वाटर दे विच पाउणे आ, ये तो एक कैमीकल रिएक्शन है, तो कैमीकल रिएक्शन तो मिक्सचर हो नहीं सकता, ये तो कंपाउंड हुंदा है। ਇਹਦਾ मतलब आंसर की आऊगा अपने कोले एडिंग मिल्क इन वाटर। मिल्क की कोई भी प्रपोर्शन फिक्स नहीं हैगी, जिन्ना भी आप वाटर दे विच ऐड कर सकते हैं, तो यह कि एक फिजिकल प्रोसैस है। ठीक है, यह की एग्जाम्पल है मिक्सचर दी। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9, प्योरिटी ऑफ आ सॉलिड सबसटांस कैन बी चैकड बाय, कोई भी सबसटांस आ जिहड़ा प्योर हैगा या नहीं हैगा, आपां किवें चैक करांगे। दो तरीके नाल किसी भी सबसटांस की जिहड़ी प्योरिटी है चैक की जा सकती है, बॉयलिंग पॉइंट के नाल ते मैल्टिंग पॉइंट के नाल। ठीक है, बॉयलिंग पॉइंट ते मैल्टिंग पॉइंट हर एक चीज़ का की हुंदा है फिक्स हुंदा है हमेशा। ठीक है, इसदा मतलब प्योरिटी आपां किहदे नाल चैक कर सकते हैं, बॉयलिंग पॉइंट नाल एंड मैल्टिंग पॉइंट नाल। क्लीयर। अगर आपां नूं स्पैशल आ जाता है कि सॉलिड, तो सॉलिड अपने कोले मैल्ट करूगा, ਇਹਦਾ मतलब सॉलिड की आपां मैल्टिंग पॉइंट ना चैक करांगे। अगर आपां नूं आ जांदा लिक्विड, तो लिक्विड की बॉयल करूगा, ਇਹਦਾ मतलब लिक्विड की आपां बॉयलिंग पॉइंट ना चैक करांगे। क्लीयर। अगर सॉलिड आ गया तो ਇਹਦਾ मतलब इस क्वेश्चन का आंसर की होगा, सॉलिड की करूगा मैल्ट करूगा, मैल्टिंग पॉइंट। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 10, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सैपरेटेड बाय। आपां ने पढ़िया सी कि जो दो लिक्विड लैने आपां, उन्होंने किहड़ी टैक्नीक दे नाल सैपरेट करदे हां, फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन दे नाल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे विच की हुंदा है कि आपां दो लिक्विड लै रहे हां, जिवें इथेनॉल ते वाटर लिया आपां ने, इन्हां दा की होऊगा टैंपरेचर डिफरेंट होऊगा। ठीक है, डिस्टिलेशन दे विच की करदे आपां हीट दिंदे आ, हीट दे के जिहदा मैल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट घट सीगा वो पहलां वैपोरेट कर जू, जिहदा ज़्यादा वो बाद दे विच वैपोरेट करूगा। इस तरह आपां उन्हां दोनां नूं की है अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जदों भी दो लिक्विडां दे विच टैंपरेचर डिफरेंस हुंदा है तो दो लिक्विडां नूं सैपरेट करना हुंदा है, उदों आपां किहड़ी टैक्नीक यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लीयर। क्वेश्चन नंबर 11, साल्ट कैन बी obtained from सी वाटर बाय। ये तो अपन चंगी तरह पता है कि सॉल्ट नूं आपां सी वाटर दे विचों सॉल्ट नूं किवें अलग करांगे। आपां नूं पता वाटर की है, इवैपोरेट हो सकता है, भाप बन के उड़ सकता है, तो पानी नूं आपां भाप बना के उड़ा देंगे, पिछे की बच जू अपने कोले? सॉल्ट बच जूगा। तो ये किहड़ी प्रोसैस नाल करदे आपां? इवैपोरेशन दे नाल, बाष्पीकरण। इवैपोरेशन नाल आपां की है साल्ट प्राप्त कर सकते हैं। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 12, अ सैंपल कंटेन्स टू सबसटेंस एंड हैज यूनीफॉर्म प्रॉपर्टीज। द सैंपल इज, कोई भी सैंपल है दो चीज़ों का बनया, टू सबसटेंस का, एंड हैज़ यूनीफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूनीफॉर्म प्रॉपर्टी ना तो सैंपल की होगा, कम हैट्रोजीनियस तो हो नहीं सकता, क्योंकि हैट्रोजीनियस दे विच की हुंदा है कि अलग अलग तरह का मिक्सचर है। ठीक है, यूनीफॉर्म नहीं है, नॉन यूनीफॉर्म है, इक्को जिहा नहीं है। ठीक है, एलीमेंट की है, सिंपल एक चीज़ होंदी है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दो सबसटेंस का मिक्सचर नहीं होंदा। ताकि हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर या फिर कंपाउंड। आपां ने की कीता, सिंपल दो चीज़ों नूं पाया गा, कोई भी कैमिकल रिएक्शन नहीं कराया। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर की आऊगा कि यह की एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि इक्को जा यूनीफॉर्म प्रॉपर्टीज क्या है ना, तो मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होगा। नैक्सट है अ मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड लैड क्लोराइड। तो ये भी याद रखना कि ZN की फॉर्मूला है जिंक का, PV की लैड का। ठीक है, लैड क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, इन्हों आपां किवें सैपरेट आउट कर सकते हैं? ठीक है, कद नाल कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन दे नाल। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसैस की हुंदी है कि दोनों सल्यूशनां नूं आपां ने घोलता, हीट कीती, तो इन्हां दे विचों एक दे की बन जाणगे? क्रिस्टल बन जाणगे। ठीक है, क्रिस्टल छोटे छोटे टुकड़े बन जाणगे, तो किहड़ी प्रोसैस नाल सैपरेट आउट कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन दे नाल। क्वेश्चन नंबर 14 विच की आ मिक्सचर ऑफ मिथाइल एल्कोहल एंड एसीटोन कैन बी सैपरेटेड बाय। आपां नूं पता है कि दोने की ने? लिक्विड ने, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। आपां हुणे पढ़ के आए हैं कि जो कोई चीज़ लिक्विड हुंदियां ने दो, ठीक है, आपां उहदा टैंपरेचर डिफरेंस देखते हैं, तो टैंपरेचर डिफरेंस देख के आपां किहड़ी प्रोसैस नाल सैपरेट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे नाल। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपां नूं पता है कि की प्रोसैस हुंदी है। अगर किसी नूं नहीं पता तो अपनी प्रीवियस वीडियोज़ नूं चैक कर सकते हैं, उहदे विच सारियां प्रोसैस दसियां होईयां ने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म दे विच। क्वेश्चन नंबर 15, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर मे बेस्ट बी सैपरेटेड बाय। ये क्वेश्चन आपां कर चुके हैं कि सैंड ते सल्फर नूं आपां किहनां सैपरेट करांगे? डिजोल्विंग इन CS2 कार्बन डाईसल्फाइड, क्योंकि आपां नूं पता है कार्बन डाईसल्फाइड च कौन घुलूगा? कल्ला सल्फर। ठीक है, फिल्टर करके आपां की सल्फर नूं सैपरेट आउट कर सकते हैं। नैक्सट है विच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर फेरिक और सल्फर रिएक्ट विद डिल्यूट HCl गिव हाइड्रोजन। आपां नूं पता है कि जो कोई भी मैटल फेरिक है जो वो की है HCl दे नाल रिएक्ट करूगा, अपने को की बनाऊगा? फेरिक क्लोराइड, एक सॉल्ट बनाऊगा, नाल की बनू अपने को हाइड्रोजन गैस। ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜੀ चीज़ रिएक्ट करूगी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? HCl ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ चीज़ रिएक्ट करूगी? आयरन। Fe किहदा फार्मूला है? आयरन का। ठीक है, जिन्हों ਆਪਾਂ लोहा कहने आ, आयरन का फार्मूला है सैंबल Fe। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी प्योर सबसटेंस। प्योर चीज़ जिन्ने भी सॉल्ट होंदे ने, सॉल्ट वो सारे की होंदे ने? प्योर होंदे आ। ठीक है, तो इन्हां दे विचों सॉल्ट कौन है? सोडियम क्लोराइड।
ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NaCl, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਮਕ, ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਨੇਗੇ ਮਿਕਸਚਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਮਿਕਸਚਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ 'ਤੇ। ਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੇਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਰ ਆਫ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਐਟਮਸ ਕੈਮੀਕਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की हो जाऊगा ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ PDF ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ PDF ਮਿਲ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।